Right, rolling. Hello everyone, welcome back to another episode of Whistling Creator Confessions, where we get real and candid with your favorite content creators and discuss everything and behind the scenes of content creation. I am Kshitij, your host, and today we will be discussing an important question जो सब लोग हमसे भी पूछते हैं and creators से भी पूछते हैं, that is content creation overhyped? Yeah, is it really sustainable in 2025? So you can't miss today's episode, because if you are someone who finds content creation space fascinating or looking forward to start and grow, or let's try content creation, या फिर looking forward to other ways of monetizing your content, you have to simply stick to this episode till the end. Some fun and interesting games and some really interesting and spicy rapid fire questions. So we have an incredible panel today who is just slaying over social media with their content. Let's welcome Megha, Pratibha and Sonali. Thank you guys for doing this. Megha, you are such a versatile creator. From lifestyle, fashion, beauty, events, you are doing it everything. Thank you. Thank you for joining in. And how are you today? I am doing very fine. Thank you so much for having me over here. Amazing. Sonali, you are just breaking the content creation myths. Thank you. कि even creators with less following can do amazing, can earn huge. Okay, so I would love to talk about my journey here. As you said, key numbers don't matter and everything is going good, even though I'm at 18K followers. Thank you so much for joining in. Thank you. Pratibha, thank you so much आने के लिए, and your sneakers are looking very good first of all. Thank you. And girls, if you are looking for sneaker recommendation along with fashion beauty, of course, she gives some really amazing recommendations. Go check it out on her page. Guys, follow me for sneaker recommendations, please. How are you doing? How are you beating the Delhi summers? Somehow, with all those blow dry and frizzy hair, we are It's just too stuck. hot. I'm not taking any outdoor shoots. I know, right? Not for this month. Yeah, तो चक्कर it's खा very के hot. जाऊंगी, मुझे हर एक शूट के बाद ऐसा फील होता है. It's very hot. It's red alert in Delhi and it's very hot. So better we do indoor So shoots. better indoor shoots. Yeah. Indoor So better. Got it. एसी को 16 पे रखो और शूट करो. 16 भी काम नहीं कर रहा आजकल. एक्चुअली Yes. उससे नीचे बनाया नहीं, अभी क्या करें. तो आज की कॉन्वर्सेशन ना that we want to discuss about, and the point that we want to cover in this is content creation overhyped or is it sustainable in 2025 or not? ये क्वेश्चन हम लोगों से and maybe आप लोगों से भी सभी लोग पूछते होंगे कि क्यों कर रहे हैं कब सब content creation and इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं इसके बारे में, but there is no one giving the exact guidelines, या फिर Exactly. exact guidelines तो चलो है भी नहीं, but no one is telling the behind the real scenes of truths. it, right? कोई नहीं बता रहा है कि इतना fascinating जितना लगता है, it's also a hard thing to do it, right? गलतियाँ होती हैं, there are bad Exactly. days, there are good days, but no one is talking about it. What's your take? Is it really overhyped या फिर कुछ It's है? never overhyped. It cannot be overhyped. Basically, content creation, I believe, gives us freedom to do whatever we want at whatever time pace. It is totally in our hand. But the only struggle is back end पे कोई नहीं देखता है कि what we do. Right. We do scripting, Exactly. analysis, and a lot goes on behind that 30-15 second reel, which brands also doesn't. Exactly. Right. So there's a lot behind a 60 Yeah. seconds reel. There's a It lot. is a lot. There's a scripting, editing. उसके बाद shoot खुद करना, manage खुद करना, POC से बात करके खुद से retakes, reshoots करना. It's very difficult. Behind a 60 second reel, there's a lot that goes. Yeah, content can never be overhyped because I feel it's like we are sitting in a restaurant and there are multiple things in the menu. I might like XYZ thing, but the other person will like Z, and the other Obviously, person will I like matcha and she likes hazelnut latte. It's just like that. For me, maybe matcha is not my type, Right. but someone is consuming it. So Exactly. content is like that only. आपके content को हमेशा कहीं ना कहीं कोई देखने वाला है. बस Exactly. आपको बनाने की जरूरत है. How did you find your initial audience and आपको पता कैसे चला कि this is it what you wanted to do? Comment section and DM only, because when I see fashion के ज़्यादा interest है and sometimes I see कि travel का ज़्यादा interest है, so from those things I get to know what they like the most and then only I plan my content accordingly. So I started my content creation journey in 2020. It's been 5 years now. So मैंने कभी सोचा नहीं था कि content creation को मैं एक full time career बनाऊंगी. I never thought it. जब मैंने start किया था तब भी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि this can be my career. So basically my first
पेड ब्रांड वॉज कैंपस एंड अर्बैनिक का मेरा फर्स्ट क्लोथिंग ब्रांड था. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि ओके मतलब एक टाइम पे जब हम खुद से बाय करते थे, नाउ वी आर गेटिंग स्पॉन्सर्ड कैंपस एम्बेसडरशिप्स. तो इट वाज रियली गुड फॉर मी एंड तब से मैंने एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया कि ठीक है, आई कैन डू इट. देयर इज समथिंग दे सी इन माई प्रोफाइल एंड आई कैन रियली टेक इट एज अ करियर. For me, content response is always developing. Like right now, if I'm talking about fashion, they want to see fashion, but maybe down the line, if I'm talking about same thing again and again, my audience will not develop, and the audience and the viewers are developing each and every day. Developing your content and taking positive feedback is very important in this line. अगर तुम feedback अच्छे से ले रहे हो और तुम समझ पा रहे हो कि लोगों को क्या देखने में मज़ा आ रहा है, तो तुम ग्रो कर सकते हो. और फिर हम ये भी है कि सारे निशेस नहीं कर नहीं सकते कर एक बार सकते. में. सभी नहीं बना सकते Correct. और हर कोई भी नहीं कर सकता. दैट्स ऑल्सो टेक ऑन टू इट. कुछ लोगों को लगता है मे बी करके ब्लैंडली कुछ भी हो जाएगा, बट इट डजंट हैपन. यू नीड प्लानिंग, प्लॉटिंग. You need Exactly. your essence in the content. Yes. If you have that essence, then you can change, like mold कर सकते हो अपने content को हर तरीके से. But अपना एक essence रखना is very 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 important Exactly. in content creation. बट समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग राइट, उसको पता नहीं है कि मेरा फैशन फोटे है, लाइफस्टाइल फोटे है या ब्यूटी फोटे है, क्या उसको एटलीस्ट इन द बिगिनिंग सब ट्राई करना चाहिए? एंड व्हाट आर द फर्स्ट 2-3 स्टेप्स टू स्टार्ट इवेंचुअली विद कंटेंट क्रिएशन? I believe they should start with what resonate with them best. Exactly. अब somewhat if I'll say किसी को फिटनेस ज़्यादा पसंद है, वो सोचे सिर्फ फैशन बना दूँ, तो वो उस पे Right. अपना fully नहीं दे पाएगा. हाँ. That's impossible. Exactly. So that person has to start with fitness. Maybe they'll later on drop into fashion, but they have Exactly. to start with fitness. हाँ. So that's Even very. I also feel because content आता रहना चाहिए, that is more important. और वो content तभी बना पाएंगे अगर उनको दिल से मन कर रहा है बनाने का. और अगर फिटनेस वाला फैशन में चला जाएगा तो वो सिर्फ ये देखेगा कि माई रील शुड बी Competition क्या परफेक्ट. क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं में डर में रह जाएगा कि अरे ये तो मैं Exactly. नहीं कर पा रहा. FOMO वाली चीज आ जाएगी. Exactly. You have to make and explore. Then only you will get to know what is the best. But start with something which resonate with you, so Yeah. that you know where should I be consistent about. क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा जब जानोगे ना, तब आपकी ऑडियंस आपको ज़्यादा पहचानेगी. फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. तभी Exactly. दूसरे लोग समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, और हाँ. तभी वो सुनना चाहेंगे. So Exactly. अगर स्टार्ट करना है, फाइंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. Yes. करेक्ट. Start with that and then slowly gradually you can then branch it out. Exactly. क्योंकि जब तक आपको अपना कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा ना, लोगों को आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा. What is that eureka moment in your content creation journey जहाँ पे you realize कि इसको तो full time हम लोग खुद कर सकते हैं? In COVID, basically, I was the only person who was going to the job because I was a healthcare, like I was actually practicing as a dietitian at that point, and I was like कि भाई मैं क्यों जा रही हूँ मैं, because उन्होंने बोला था doctors in healthcare industry वालों का is always full time, rest can do work from home whatever, and then everybody was stuck at home, and I was like this is not something which I like doing full time. I like to do content creation, I like to explore places, then why on earth I am going to that job? So then I decided to quit. Then obviously it's not that easy. I have to convince my parents because I got a degree in whole that field. Then I convinced them, they were okay with it, and then I was just like switch करते ही, like trust me, I wasn't getting that much opportunities back then, but जब मैंने एक final take ले लिया that this is what I want to do, I started growing in this field that particular time only. What Because full time, basically this needs Yeah, dedication. correct. That's the whole point. Dedication and time is very important. and what was that point that when you realized कि हाँ अब तो कर सकते हैं full time? Was it monetization for you? Was it Yeah, brands monetization or- only, obviously. Got it. Because पहले I wasn't consistent at all. Because obviously job के साथ कोई कैसे ही कर सकता है. People can do, they are doing, I know they are doing बहुत ही अच्छा, but not me because I need dedication. Plus because I wanted my feet to be very very aesthetic and perfect. So that was also a case. Then I started being consistent, and within 15 days I got a very good brand collab, and touch wood, तब से it's never going down. Amazing. So Nadi, what about you? ऑलराइट, सो मेरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं. खुद पे कॉन्फिडेंस अपने यूट्यूब से आया, पहले इंस्टाग्राम से पहले, बिकॉज यूट्यूब पे यू आर वेरी रॉ, वेरी सब कुछ बहुत रियल होता है, अनफिल्टर्ड होता है, बैक कैमरे से शूट करते हो. तो धीरे धीरे जब मैंने यूट्यूब किया, इंस्टाग्राम किया, पहले तो पेड कोलैब्स बिल्कुल भी नहीं आते थे. मैंने बार्टर किए, मैंने बहुत बार्टर किया स्टार्टिंग में, बिकॉज उस टाइम पे जब हम स्टार्ट करते हैं एकदम से पेड कोलैब्स नहीं आते हैं. एंड स्टार्टिंग में तो मेरे पास बार्टर ब्रांड्स भी नहीं थे.
आई वॉज ओनली ऑन 500 फॉलोअर्स. तो मैंने क्या किया था, मैं खुद के जैसे हम खुद से जो आउटफिट्स बाय करते हैं उनको पहन के मैं अच्छे अच्छे स्पॉट्स पे जाके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके डालती थी. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई प्रोफाइल. ओके, सो ब्रांड स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि ठीक है, शी पोस्ट थोड़ा फैशन लाइफस्टाइल कंटेंट, एंड दैट्स व्हेन द फर्स्ट ब्रांड विच रीच्ड आउट टू मी. लाइक मैंने फॉर्म फिल किया था अर्बानिक का एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज अ उनका कैंपस एम्बेसडर. वो पेड नहीं था, उसके बाद कैंपस वॉज माई पेड ब्रांड. सो धीरे धीरे करके जब ऐसे थोड़ा पेड ब्रांड्स आए, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू टेक फॉरवर्ड. बट मेरे को असली कॉन्फिडेंस अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में तब आया व्हेन आई वन द साउथ कोरिया ट्रिप फ्रॉम न्यूमी. इट वॉज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप. इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड इट वॉज माई फर्स्ट क्रिएटर्स अचीवमेंट इन माई लाइफ. सो दैट वॉज समथिंग जिसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी. मतलब जिस नंबर ऑफ फॉलोअर्स में मैं हूँ अभी, आई एम एट 18K. Yes. आई एम नॉट एग्जाम्पल ऑफ 100K फॉलोअर्स की ठीक है इसके तो 100K फॉलोअर्स है, इसकी गुड रीच है इसलिए इसको वो ट्रिप मिला. दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन. Because she's a true example that followers Yes, doesn't doesn't matter. matter. Followers Not doesn't at all. matter, numbers If doesn't you matter. if you have her good content, Yeah. it will speak for itself. Although Yes. I do agree कि हमारा bread and butter होता है वो, I do agree, but it is not something जो आपको stop करता है आपके जर्नी में. मतलब नंबर्स को आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नंबर्स की वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, रीच नहीं आ रही तो मैं रोक दूँ, स्टॉप कर दूँ. नो, अगर आपको खुद पे बिलीव होगा ना कि आपका कंटेंट अच्छा है, आप कर सकते हो, आप अच्छा, विद टाइम एवरीथिंग विल गो गुड. इवन अभी रिसेंटली 2 months बैक मुझे विशलिंग का क्रिएटर्स अवार्ड मिला है. सो दैट वाज Yes. ऑल्सो एन अचीवमेंट. Congratulations once Yeah. Thank you again. so much. Congratulations. So that was also an achievement for me. So these are the small things that keeps you going, and इसमें ही Yeah. आपको realize होता है ठीक है, okay Sonali, you're doing something good. Yeah, you are on a good ऐसा path. क्या करना Yeah. सोनाली? मतलब our audience wants to know. She's What- making perfect Pinterest feed. What's That's perfect? what I can relate to. So, thank you so much. I feel Megha. storytelling and the type of No. content creation So the भी concepts matters, yes. which I post ना, अगर मेरे पास एक normal brand भी आएगा ना, आई थिंक 10 गुना आगे 100 गुना ज़्यादा कि उसके लिए मैं क्या क्या अच्छा extra कर कॉन्सेप्ट ला निकाल के सकते हो, उसको हाँ. प्रेजेंट करूँ. सो बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि मेरा जो भी एक ब्रांड कोलैब होता है उसको जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करती हूँ, आई रियली लाइक दैट thing, the way I present that a particular content piece. I do a lot of things, मतलब behind the scenes, मतलब मैं पूरा एक पहले flow बनाती हूँ पूरा अपना PDF में कि ठीक है what are the props I'm using, कौन से studio में, which is gonna the background, which is there are a lot of BTS which I just write it, I just take a print and then I shoot it. It's like a full-time career. Yeah. It is a full-time It is. career. Yeah, it is definitely. Pratibha, what about you? What was that moment? कि अब तो यही Yeah, करना है. I have been in the content creation journey from last 8 years, I guess. I started in my college, but I never did it full time because I don't have the, I'll say, opportunity or the flexibility to do that full time because of financial background where I come from. Now I am very happy that I am at a good stage, but yeah, I don't have always been there. And मुझे लगता है कि starting में I did it because I wanted a escape, because मुझे बस अच्छा दिखना था और मुझे लगता था कि इट्स नॉट अबाउट मनी और एवरी टाइम पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट खरीदा भी जा सकता है. मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन It's इट. fun, मतलब content It's fun. creation. कंटेंट मेरे को escape लगता था कि इफ़ आई एम स्टाइलिंग समथिंग, चाहे वो 50 रुपए का टॉप सरोजनी नगर से क्यों ना हो, स्टिल आई एम ओनिंग इट. एंड मुझे लगता था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तुम अच्छा फील कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बस वही करते करते मैंने स्टार्ट कर दिया कंटेंट बनाना. एंड देन आई गॉट इनवाइट फॉर पॉपेक्सो. 2017 में पॉपेक्सो वाज अ बिग Very, Exactly. very big thing. So Popixo का first event आया, I was very excited. It was a collaboration with Cadbury, and they were just giving me 1,000 rupees to come to that event, which is very less. ठीक है, 1,000 rupees अभी लोग बोलेंगे अरे 1,000 रुपए के लिए तो But चली उस भी time पे वो बहुत लगता था. and उसके लिए I don't know if I should say it or not, but मेरे पास ना उस टाइम, अभी मैं जूतों और फुटवेयर के लिए इतनी पैशनेट हूँ ना, उस टाइम मेरे पास एक हील नहीं थी उस इवेंट पे पहनने के लिए. एंड मैंने मेरी मम्मा को बोला, मम्मा जस्ट गिव मी 300 रुपीज़, आई बाय वन हील बिकॉज आई हैव टू अटेंड अ इवेंट. एंड माई मॉम गेव इट टू मी. आई बॉट अ हील एंड मैं उस इवेंट पे गई और उस हील को पहन के मैंने एटलीस्ट 10-15 पता नहीं कितनी वीडियोज़ बनाई होंगी और वहाँ से मेरी इवेंट की जर्नी स्टार्ट हुई. सो मैंने अभी
भी वो हील मेरे घर पे पड़ी हुई है, बिकॉज आई केप्ट इट लाइक दैट कि भाई आई वॉज पैशनेट अबाउट शूज, ड्रेसेस एंड एवरीथिंग. इट्स नॉट अबाउट दैट 300 रुपीज़ का हील, इट्स अबाउट कि मैंने उसको इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे कल इवेंट पे जाना है. पता नहीं यार मैं क्यों शेयर कर रही हूँ एकदम से रैंडम स्टोरी, बट आई फेल्ट शेयरिंग इट बिकॉज मुझे लगता है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट. और अब जब मैं कोई भी नया शू खरीदती हूँ आई फील इक्वली एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज मुझे वो चीज़ याद आ जाती है कि मैंने फर्स्ट इवेंट के लिए मेरी मम्मा से पैसे मांग के और वो चीज़ खरीदी, एंड नाउ आई एम हियर वेयर आई कैन सपोर्ट माई फैमिली. If we have to summarize, it is sustainable. It can pay bills, but it will definitely take time, right? And there Yeah. will be Time, burnouts, ups patience. and downs. So, how to stay consistent with it, and how to make it a sustainable, long-time, full-time career for anyone? यार मेरे को ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले किसी ने Q&A पे भी पूछा था कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बिकॉज आई रिसेंटली गॉट मैरिड अभी, और इससे पहले मैं 5 साल मैंने कॉर्पोरेट में वर्क किया है, एंड आई वॉज अ मीडिया एनालिस्ट. और मीडिया एनालिस्ट की जॉब ईजी नहीं होता है, लाइक यू आर प्लेइंग विद बिलियंस ऑफ मनी, ठीक है, एंड वहाँ पे इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, तो कैसे मैनेज कर रहे हो, बेसिकली यही क्वेश्चन था लोगों का. तो मैंने सीधा आंसर दिया, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड. 5-6 साल मैंने सस्टेनेबल रहने के लिए यही किया है. ऑन सैटरडे संडेज, जब सैटरडेज को सब लोग नैप ले रहे होते हैं, एंड तो मैं 5 से 6 घंटे लेके पूरे, पहले मैं मंडे को कुछ सारी चीज़ें ऑर्डर कर देती थी जिस चीज़ का भी मुझे शूट करना है या फिर कोई भी जो प्लान करना है. आई कीप 6 आइडियाज़ हैंडी कि मैं ये सैटरडे को शूट कर लूँगी, और फिर मैं जब 2-3 घंटे में आई ट्राई टू रैप अप एज मैनी वीडियोज़ एज आई कैन, एंड ऑन संडे आई यूज टू एडिट वो 2-4 घंटे निकाल के. आई सेक्रीफाइज्ड ऑल माई सैटरडे संडेज फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years so that I can leave my job, collect a good amount of money where I can buy my freedom from that corporate job. I will say मैंने अपनी फ्रीडम को खरीदा है. मैं तो यही बोलूँगी यार, क्योंकि मेरे लिए था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि भाई पैसा चाहिए, और अगर आप थोड़े से अंडरवेलमिंग बैकग्राउंड से आते हो तो फिर पेरेंट्स को समझाना और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर लाइक कि अरे मैं नहीं सस्टेन कर पा रहे, मतलब अगर हमने इतनी दिक्कतें देखी हैं तो हमारे बच्चे ना देखें. आई विल डू समथिंग, जस्ट कीप बिलीव ऑन मी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग राइट एंड इट विल पे ऑफ. अच्छी जगह पे हूँ अब, अच्छा लग रहा है. Megha, how do you handle burnouts? I just do it by thinking कि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, so I can also do it. That's what my straight fit thing is. I've seen people जिन्होंने मेरे बाद में स्टार्ट किया, जिन्होंने बहुत ही बाद में स्टार्ट किया, maybe 1 year or 2 year, उनके शायद 400-500 हो गए because some of the trending reel, कुछ ऐसे content दिखा के which is not that acceptable in the society, but they are still doing it. कुछ brands उन्हें पैसे दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, they are doing it. वो उनका मैटर है, but मेरा मैटर सिर्फ ये है, कम है तो it's okay, but I have to do it because I don't want that past life again. It's not like प्रतिभा की तरह मेरे लिए मुश्किल नहीं था. My parents are completely flexible. Do whatever you want to do in your life. It's completely up to you, but कुछ गलत नहीं करना. That's the whole point. तो अब I was like, अगर ये ट्रस्ट कर रहे हैं ना तो बाकी लोग भी करेंगे. अब इनके लिए तो I have to do it. तो that is the only thing. I think एक बार फैमिली वाला सपोर्ट जब आ जाता है ना, उनका कॉन्फिडेंस अलग है ना, तो फिर लोग क्या बोल रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ता. हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो हेयर कलर करवाया मैंने, एवरीबडी ऑन द इंटरनेट दे आर लाइक यू व्हाट इज दिस, आई शुड वॉमिट ऑन योर फेस. लिटरली आई एम गेटिंग दोज काइंड ऑफ DM. बट जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, मेरा भाई बोलता है यू जस्ट लुकिंग लाइक बेली आइलिश, वाओ व्हाट अ हेयर कलर. सो दैट्स द ओनली कॉन्फिडेंस. अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ बोल ले, बट बिकॉज मेरे भाई को पसंद आया, अभी वो छोटा, इज इन कॉलेज, उतना कोई नहीं है, उसने कुछ नहीं देखा, बट जस्ट बिकॉज उसको पसंद आया, आई एम ओके विद इट कि ठीक है, आई हैव द बेस्ट कलर, आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी. सो अभी आई लिटरली गॉट 50 to 60 plus comments and DMs about what the hell is this and all that stuff. But just because my little brother said it is the best color ever, I am okay with it. मुझे कुछ मैटर ही नहीं करता है. Back when I was a kid, मेरे डैड मेरे को बताते थे, लाइक फाइनेंशियल इशू तो कोई ऐसा कुछ था नहीं, दे कुड हैव गॉन, बट यूजुअली उस टाइम पे लोग इतना आउटिंग ऐसी जगह पे नहीं करते थे. तो अभी पास्ट 6 months से नहीं, पास्ट 2 years से भी आई हैव शॉट अ लॉट फॉर ITC एंड स्पेशली ITC मौर्या. एंड एज अ किड आई यूज्ड टू रिमेंबर कि मेरे पापा मुझे बताते थे कि वो सामने से जाते थे एंड ही ऑलवेज वांटेड टू गो देयर. बट ठीक है,
God has something else planned for him. Not like उनके पास नहीं था, but the cases की he actually passed away at the age of 27. So he couldn't. मेरे को अब ऐसा लगता है I wish मैं उनको लेके जा सकती अंदर, क्योंकि वो कभी नहीं गए अंदर, वो चाहते थे. और आज मैं हूँ जो मैं इतना शूट करती हूँ ITC मौर्या का. They are just one text away. Like that POC, she's very nice lady. She asked me to come over and over again. कभी मैं जाके डाइन इन कर सकती हूँ, मैं आके बस शूट कर सकती हूँ. तो this opportunity, this value when I have in the market ना, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है. बट हाँ, ऑब्वियसली बुरा भी लगता है कि मैं कभी फादर को अपने लेके जा पाई. But I'm sure he is Seeing me very from proud there, and seeing yeah, from that's somewhere very good place. इवन माई डैड इज़ अ हार्ट पेशेंट, सो आई फील वेरी हैप्पी जब मैं उनको कहीं किसी अच्छे स्टेकेशन वगैरह पे लेके जाती हूँ. आई वन एक कॉन्टेस्ट, मतलब मैं ना मोस्टली इतनी लकी हूँ, टच वुड, मैं सारे कॉन्टेस्ट जीत जाती हूँ. मैंने सच में दिस इज ट्रू. अगली बार तेरा नाम डाल के मैं कुछ कॉन्टेस्ट करूँगी. मैंने एक कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया था, कोर्टयार्ड बाय मैरियट अरावली का, कुछ मदर्स डे का कॉन्टेस्ट था. मैंने तो रैंडमली कमेंट करके अप्लाई कर दिया, कुछ स्टोरी बतानी थी कि अपनी मम्मी के साथ फेवरेट मोमेंट बनाओ. आई जस्ट अप्लाइड इट, कमेंटेड. मेरे को नेक्स्ट डे मेल आते, यू वन द कॉन्टेस्ट, एक दिन का स्टेकेशन मिल रहा है कोर्टयार्ड बाय मैरियट में अपनी फैमिली के साथ. तो मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उस टाइम पे मैं खुद से पे करके नहीं जाने के फाइनेंशियल उसमें थी. अब तो टचवुड थिंग्स आर गोइंग गुड, सो वी कैन ऑब्वियसली पे एंड गो. बट जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो ऑब्वियसली इट वाज अ गुड थिंग कि मतलब मैं अपनी फैमिली को एक 5-star स्टेकेशन में लेके जा रही हूँ. सो आई फेल्ट हैप्पी. सो these are the things which keeps us going. And this is the only thing which motivates us the most. Exactly. This is the only thing. Family appreciation is Yeah. very Exactly. very But important. as your question was this कि क्या क्या challenges हम लोगों ने face किए, so it is not that कि हम सब कुछ happy दिखाते हैं. There are days जब मुझे ऐसा लगता है कि यार, मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी नहीं हो पा रहा है. आई शुड टेक इट अ पॉज. बिकॉज मेरे यूट्यूब पे भी ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट स्टोरी बताऊंगी. यूट्यूब का मेरा क्या हो रहा था, अभी मैं 3-4 साल से यूट्यूब जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं ना ऑडियंस जनरेटेड कंटेंट नहीं बना पा रही थी. बिकॉज मेरा एक चैलेंज ये था कि मेरे को समझ नहीं आता था कि ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में हमें अपना ऑडियंस भी बिल्ड करना होता है. दिस इज अ वेरी मेजर थिंग विच वी हैव टू डू. इट इज़ नॉट दैट कि आप बस अपना लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप बस एक कॉन्टेंट बना रहे हो. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ऑडियंस ऑल्सो. उसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले यूट्यूब पे 2 वीडियोज़ डाली कि गाइज हाउ यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड मिस्टेक्स विच आई डिड, एंड दैट बूम्ड ऑन माई यूट्यूब. मतलब उस वीडियो पे 80K व्यूज़ आए. ऑल्दो उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी इंक्रीज हुई यूट्यूब पे. बट अब अभी भी मुझे मतलब यही मिस्टेक हो रही है कि मेरे को ये लग रहा है कि यार अब तो मेरी ऑडियंस भी आ गई, अब मैं क्यों नहीं कर रही हूँ. सो देर आर डेज व्हेन वी फील डिमोटिवेटेड. देर आर डेज व्हेन वी फील कि यार क्या नेक्स्ट पोस्ट करें, अब हमारी ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा, हम अपने लिए भी हमारा क्या ऐसा कंटेंट है जो रेजोनेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, और हमें क्या अच्छा लग रहा है. सो देर आर डेज व्हेन वी फील लो एंड इट इज़ ओके टू टेक पॉजेज, आई बिलीव. करेक्ट. मैं ये बहुत ज़्यादा करती हूँ. आई पुट अ लॉट ऑफ Q&As. आई आस्क क्वेश्चन मेरे ब्रॉडकास्ट पे भी, क्या चाहिए भाई तुमको, जस्ट say it, I'll make content on Audience it. से relate करना, Audience से connect पूछना करना बहुत is ज़रूरी very है. important. And recently I started a giveaway contest which is like heartfelt hug. And every week I pick one person and send something. कुछ भी रैंडम, कभी कुकी भेज दिया, कभी कुछ स्किन केयर भेज दिया, या कुछ भी भेज दिया. एंड आई डू, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कुछ वो हो रहा है, बट आई रियली वॉन्ट कि मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट करे. बिकॉज सस्टेनेबल रहने के लिए ऑडियंस is the king. And we are the queens if we want to slay. King को खुश रखना पड़ेगा. That is the easy game. एंड आई बिलीव हम जितना रॉ रहेंगे अपने हाँ, ऑडियंस के हाँ. साथ, उतना ज़्यादा बेटर है. उतना But ज़्यादा. I have You this can't one fake, thing मतलब to you can't confess. fake, हाँ हाँ बोल. I have this one thing to confess. Yes. अभी जैसे ये Q&A वाला हाँ, इशू हाँ. आया. अब when I started this, obviously मुझे स्टार्टिंग में कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई क्यों पूछेगा. तो तूने मुझे खुद से question? क्वेश्चन लिखे? मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट से जाके, like for all those who are starting, this is like the big thing. हाँ, हाँ. Even I did Obviously it. कोई किसी को क्या It's पता होगा. okay. I मैं did it प्राइवेट too. अकाउंट से जाके उससे क्वेश्चंस पूछती एंड अपने पब्लिक अकाउंट से आके यहाँ पे बताती. सो दैट एक्चुअली बिल्ड अप. और फिर जेन्युइनली लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया. Because मुझे लगता है हाँ. कि they want to ask but they are shy. Yeah, और कि कभी उन्हें क्या लगता है कि पूछे, maybe ये कैसे person नहीं पूछे, बताएगा. क्या करे. So ये चीज़ होती है. अगर फर्स्ट आंसर डाल दो ना तो लोग पूछने लग जाते हैं और क्वेश्चंस.
मैं घर के बाहर हूँ एंड पार्सल वाले भैया पार्सल देने आए हैं एंड मैं से 3-4 शूज़ मंगाए थे, मैंने फिर से शूज़ आगे लोगों ने पागल लड़की है ये, शूज़ के पीछे शूज़ पगलू। Guys, please follow her. She's going to make a whole huge wall of shoes. So वो बड़ी One day, जल्दी guys, आ रहा है. one day, I will 6 months definitely. only, 6 months only. तो फिर please दीवार be की ready. जगह ढूंढ रही हूँ गाइस बस। You know what? हमारे podcast में like this is kind of a manifestation couch. तो every guest or every creator who has come over here, they are manifesting something and it is being a reality. And गाइस 11/11 से कुछ नहीं हो रहा, क्या पता इससे हो जाए। definitely हो जाएगा पक्का। हाँ, तो मैं ऐसे शूज़ ले रही हूँ और एक हाथ में वैसे ऐसे शूज़ है और वो भैया मुझसे OTP मांग रहा है, मैं उसको ऐसे देख के OTP बता रही हूँ और यहाँ से एक बंदा आता है, हाय प्रतिभा, मैं आपके शूज़ ले आके आई हूँ, आप शूज़ मैंने देखे, आपकी वीडियो देखी, आप ये वाला शूज़ का लिंक देना। मतलब भैया ऊपर जाके अनबॉक्सिंग तो बनाने दे अभी। And हाँ, और वो डिलीवरी वाला भैया, मैडम मुझे फ्री कर दो, OTP दे दो। इट वॉज सो रैंडम, मैं एकदम घर का गेट खोल के एक तरफ से ऐसे टांग से अटका के खड़ी हूँ उसको और एक हाथ में मेरे शूज़ है, एक हाथ से मैं OTP बता रही हूँ। वेरी ऑकवर्ड बट एंड देन वाज लाइक एक फोटो खींच ले, हाँ ठीक है आ जाओ। मतलब मेरे साथ तो अजीब हो गरीब इंसिडेंट्स हुए हैं, वेरी क्यूट वन। weirdly dressed होते हैं. आई नो राइट, मैं तो पार्सल लेने गई थी नीचे एंड वी लुक सो बैड उस टाइम पे। And audience like transparency. Yeah, they do. हाँ They- हाँ 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 They Yeah. want to know your authentic and Yes. rawness. मेरे को and लगता है कि real- मेरी ऑडियंस reality. मेरे लिए इसलिए कनेक्ट कर पा रही है, इवन इफ आई एम शोइंग 20,000 का बैग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, आई एम पोस्टिंग अबाउट इट कि भाई आज सेल लगी है, मैंने सेल से खरीदा है इसको, एंड इवन आई एम पोस्टिंग 2,000 की चीज़ या फिर 1,000 रुपए की, कितने भी रुपए की चीज़, वो ऑनेस्ट है उस चीज़ को देखने में कि भाई ये बंदी बता देगी जितने का इसने खरीदा है। आई वॉज नॉट लाइक कि मैंने कोई चीज़ ली है 10 रुपए की, उसको बताऊंगी 100 रुपए की एंड देन आई विल क्रिएट अ लग्जरी कंटेंट आउट ऑफ इट। नो, आई एम नॉट लाइक दैट। माई कंटेंट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ यू कैन सेव। आई हैव सेव विद PG, पूरा हैशटैग। तुम्हारा पैसा बचाना इस मेरे कंधों पे बाहर है, मैं वैसे बचवाऊंगी तुम्हारे। एंड फिर मुझे लगता है कि जो न्यू क्रिएटर्स हैं, बिगिनर्स हैं, कुछ ना उनके मन में ये भी डर होता है कि हम इसलिए स्टार्ट ना करें कि बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं ऑलरेडी, इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। बट मुझे भी लगता है कि हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वी स्क्रॉल टू मच। हाँ। बट अगर मैं We consume a lot. वी कंज्यूम अ लॉट, बट अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ ना तो नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। इट्स अ गुड फील्ड टू स्टार्ट। अगर कोई बिगिनर है, उनको दे आर रियली पैशनेट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट। अपने स्कूल में, अब स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, अपने स्कूल में से इट्स जस्ट मी हु इज डूइंग कंटेंट क्रिएशन, अपने कॉलेज में इट्स जस्ट मी हु इज डूइंग कंटेंट क्रिएशन। अब जो मेरे कॉलेज के कलीग्स हैं, अगर उनके ऑफिस में या उनके किसी भी वर्क प्लेस में कुछ होता है जिसमें इन्फ्लुएंसर की रिक्वायरमेंट होती है, दे रीच आउट टू मी। सो इट्स नॉट दैट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा है, इट्स जस्ट दैट वी कंज्यूम अ लॉट। सो आई थिंक जो न्यू बिगिनर्स हैं वो ये तो डर ना ही लाए अपने माइंड में कि बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट ये क्वेश्चन मेरे से IIT में भी पूछा था। आई वेंट टू IIT रिसेंटली, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं? तो फिर मैंने उनसे स्ट्रेट आउट क्वेश्चन पूछा, अभी आप अपनी सोसाइटी में जाओ और पूछो वहाँ पे कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एग्जैक्टली, या फिर कितने BBA करके बैठे हैं, एटलीस्ट 5 से 6 लोग निकलेंगे। बट उन 5 से 6 लोगों में से कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज सोसाइटीज़ जो नोएडा में से पूरी वाली होती हैं। उस पूरी सोसाइटी में एटलीस्ट 100 घर होंगे। 100 घर में अगर एक घर में 5 बंदा भी रह रहा है तो स्ट्रेट अप 500-600 लोग की मैं मान लेती हूँ, 500-600 में से सिर्फ 10 क्रिएटर होंगे। तो उसमें अभी भी रेशियो कम है। इट्स जस्ट दैट फोन इज सो हैंडी टू अस, हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। Like abhi, I teach yoga as well, as that's like a part-time thing. So abhi I was taking class. They are from a very wealthy family. अब मैं बोलूँगी नहीं because maybe they'll be watching. Very wealthy family. They have a whole lot of farmhouse. They are like wealthiest, richest person. And मैं जिनको जानती हूँ और जिनको मैं रोज़ मिलती हूँ, ठीक है। अब now what is the case that उनकी बेटी हु इज़ जस्ट आई गेस 25 मे बी, शी इज़ 25, ठीक है, वो मुझे कहती है कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि डोंट मेक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे अ गर्ल शुड show up herself out on the social media. Although if you'll see, she wear very decent clothes. ऐसा कुछ वो करती नहीं है, but it's just that पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। Yeah, I think मे बी वो कुछ कर सकती है। ideology is not developing. That is the main issue. Your But then background, they your have family everything. का background is also Exactly. responsible for They have that. everything. It's not about the wealth. It's about the ideology. बट थोड़ा बहुत तो होता ही है यार। इट्स लाइक बहुत Conventional इवोल्यूशन हो thinking गया है हाँ। और वो भी तो कंज्यूम कर ही रहे हैं वो। बट ऐसा बोलना, आई एम लाइक व्हाट, इवन फॉर ChatGPT, कैन यू बिलीव हिज फादर
told her, ये बहुत ही पर्सनल हो जाएगा कि तुम चैट जीपीटी पे भी कुछ अपना ऐसे पोस्ट मत करो. तो अभी जो वो कंटेंट आया था ना वो पीछे, दैट ट्रेंड जिसमें गिबली ट्रेंड, he literally asked कि इसमें से you don't create it because chat GPT is saving your data. And I'm like, what? होता है कुछ क्रिएटर्स को ये भी They are good problem people, होती है. but still they think that way. I don't know why. Still very nascent. I would not call nascent, but still developing. Content creation industry is developing. It is, They will yes, also yes, get to yes. know People about are this, right? understanding. But if you're passionate about Yeah. it, na, there will be a day your parents will be proud of Exactly. As our podcast name, Wishling Creator Confessions, so we would really want you to share a wildest confession of yours around content creation. Megha, you have already shared. We can take that, or if you have any other also. And the wildest one will get a hamper from us. Okay. Who wants to go the first and share? Pratibha? हाँ मैं बताऊँ, मैंने जब नया अकाउंट बनाया था तो मेरे को शेयर नहीं मिल रहे थे बिल्कुल भी. तो मेरे पास एक प्राइवेट अकाउंट था, उसमें ना 100 लोग थे बस. तो मैं हर 100 लोगों को डीएम में भेज देती थी ताकि मेरे अकाउंट पे शेयर आए 100. और लोगों के लिए अरे क्या शेयरेबल 100 shares कंटेंट आ गए. बनाती है लड़की. सो या दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू बिकॉज़ मेरे फॉलोवर ही नहीं थे, नया अकाउंट था. मैं तो जितने पंगे ले सकती थी ले लिए मैं मैंने उसमें. बताती हूँ अपना वाइल्डेस्ट कन्फेशन एज क्षितिज आस्क्ड कि हमारा वाइल्डेस्ट कन्फेशन क्या है. सो मेरा यूट्यूब से रिलेटेड है कि जब जैसे ही मैं एक वीडियो डालती हूँ ना यूट्यूब पे, मतलब अब तो ऐसा नहीं होता बट पहले ऐसा होता था. जब मैं यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करती थी ना तो मैं अपना फ़ोन ऐसे रख देती थी यहाँ पे, मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन, मेरे भाई का फ़ोन, ऊपर 2 आंटियाँ रहती हैं उनका फ़ोन, सबके फ़ोन से अपनी यूट्यूब की वीडियो चला के, क्योंकि मैंने सुना था कि पहले 10 वॉच आवर अगर पूरा देख लेंगे आपकी वीडियो तो आपकी वीडियो ना यूट्यूब push करेगा. हाँ, ये तो मैंने भी किया है. Guys, we are discussing hacks. हाँ हाँ कंप्लीट द एनालिसिस. मैंने ना एक दिन ऐसी गलती से स्नैप बना के भेज दी एंड पीपल वर लाइक यार तू क्या कर रही है. मैंने कहा 7 फोनों में अपनी वीडियो चला के देख रही हूँ, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. हाँ. सो दिस इज द वाइल्डेस्ट कन्फेशन आई बिलीव कि मैंने एक टाइम पे ये चीज़ें भी करी है. नाउ तो इट्स लाइक कि वीडियो डालो एंड मैंने तो इसके देखते साथ रहो. साथ ये भी किया कि तीनों घर के टीवी पे चला दिए थे. हाँ, मतलब तीसरा टीवी. मतलब वही आई एम सेइंग कि मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे चला देती हूँ. बट गाइस दिस इज रॉन्ग, आप मत करना. बिकॉज अगर आप यूट्यूब कर रहे हो एंड अगर आप खुद की वीडियो खुद के चैनल से या फिर आप एक जगह पे खुद से ही देख रहे हो, सो वो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है. मतलब जस्ट लेट इट बिकॉज द आईपी इज सेम. एग्जैक्टली. सो मैंने ये गलतियाँ करी थी बट इट्स माई वाइल्डेस्ट कन्फेशन की ठीक है मैं ये भी करती थी. मैं 10 फोनों से खुद की वीडियो चला के देखती हम लोग शेयर और वॉच टाइम के लिए कुछ भी करेंगे. बट ठीक है हमने सीखा अपनी गलतियों से. डन, मेरे तो कन्फेशन Done हो है. चुके हैं. So to know who is the winner, please stick to the end because हम लोग तब बताएंगे तब रिवील करेंगे. Okay, so we discussed कि audience building is very important, right? Yes. And staying true to what you are passionate about is also super important. करेक्ट. And then content is the king eventually, right? Don't fake, don't try to be someone else. Exactly. Right? The one thing that no one tells, पैसा आता है नहीं आता content creation से, and how much it can give you. Pratibha, do you want to start? यस एंड इट्स रिलेटेड टू विशलिंग. और मैं ऐसे बना के नहीं बोल रही हूँ, सच बात बता रही हूँ. जब अक्टूबर में आई थिंक विशलिंग लॉन्च हुआ था, मेरे को ईयर तो याद नहीं है बट अक्टूबर नवंबर की बात है. देखो इतना ट्रू है कि मुझे याद भी है. ठीक है कि उनका ये कब लॉन्च हुआ है. सो तब मैंने ना हॉल्स वीडियो बनाना स्टार्ट किया था एंड एट दैट टाइम विशलिंग ने मुझे दिया ही नहीं ऑटो डीएम का सिस्टम है. मैंने बोला ऐसे क्यों दे रही है मुझे. बट देयर वाज सर्टेन क्राइटेरिया यू हैव टू हिट उस टाइम पे एंड देयर वाज वेरी लेस क्रिएटर्स जो विशलिंग के साथ ऑनबोर्डेड थे. तब ना मेरे को ऑटो डीएम मेन मेरे लिए था क्योंकि इट वॉज नॉट मैनुअली पॉसिबल फॉर मी जॉब करते टाइम कि मैं कैसे लोगों को रिप्लाई करूंगी. एंड द ऑटो डीएम फीचर वॉज वेरी कूल एट दैट टाइम एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि हाँ एंड एट दैट टाइम आई ऑल्सो फेल्ट कि भाई मेरी बहुत सारे स्ट्रगल इससे सॉल्व हो रहे हैं बिकॉज इफ आई एम डूइंग जॉब मैं लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती. मैंने बहुत टाइम बात करी, पीओसी का नंबर निकाला, थोड़े से फ्रेंड से पूछा कि कैसे करते हैं एंड देन आई इवेंचुअली गॉट दी ऑटो डीएम वाला फीचर. एंड फर्स्ट टाइम मैंने पोस्ट किया एंड विद इन अ मंथ, नवंबर के पूरे मंथ में आई गॉट कमीशन जितना मेरा सैलरी था. आई विल नॉट रिवील इट बट इट वॉज अ गुड अमाउंट. आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि चलो ठीक है. अगर मतलब मैं अगर ये ऑटो डीएम फीचर नहीं यूज़ करती तो मेरी तो आधी सैलरी वाला पैसा चला जाता. वहीं से मुझे ट्रस्ट आया दैट आई कैन लीव माई जॉब. विशलिंग ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं ऐसे बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ. दिस इज माई ट्रू स्टोरी. आई थिंक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है. स्टार्टिंग में देर आर नो ब्रांड डील्स. स्टार्टिंग में यू फील वेरी डिमोटिवेटेड बट यू कैन स्टार्ट विद विशलिंग क्योंकि अगर आप ब्रांड डील से
नहीं कमा रहे, आप एफिलिएट लिंक से कमा सकते हो. अगर मैं ये सिर्फ आउटफिट की वीडियो बना के बिठा दूँ, आई नेवर नो कि कभी ये वायरल हो जाए, लोग मेरे से लिंक्स मांगे. सो विश लिंक इज समथिंग, इवन इफ देयर आर नो ब्रांड कोलैब्स, यू कैन स्टार्ट विद द एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स. सो आई फील कि we can do that also. Yeah, there are multiple That's ways to earn money, but you have to understand that area. Exactly, and as you said कि is it really sustainable? So I think there are days जब हम month में बहुत कम earn करते हैं, but there are days when it's a 6 number figures. So it's never, nice. it's always up and down, but it's fine. You'll always feel good. Mega. फॉर मी आई वुड से कि स्टार्टिंग में मेरे कभी पैसे नहीं आते थे और बिल्कुल पैसे नहीं आते थे. आई यूज टू गेट कोलैब्स वंस इन 6 months और वो भी लाइक बहुत ही कम अमाउंट के, लाइक बहुत ही कम अमाउंट के. ठीक है, एंड मुझे लगता था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी, आई वॉन्ट टू डू इट. देन आई गेस विश लिंक लॉन्च ही हुआ था. मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंस्टेंटली अगले महीने पैसा तुम्हारे अकाउंट में. नो that's the best स्ट्रगल. part. Salary की तरह खुद ही credit हो जाता है. सैलरी की तरह हर मंथ आ जाएगा XYZ डेट पे. यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी. इट्स सो फ्लेक्सिबल. दैट्स व्हाई आई जस्ट ऑब्सेस्ड विद हाउ विश लिंक टीम वर्क्स. Exactly. So Yeah. brand collaborations कभी ऐसा एक नेगेटिव हाँ. नहीं होना चाहिए कि आपके पास ब्रांड कोलैब्स नहीं आ रहे. True. You always have the affiliate ना. So this way you earn from your organic content Exactly. only. Yeah. Absolutely. It was super fun to talk to you guys, and I am sure that the audience will be liking this episode. Thank It was you. super insightful. Build a loyal audience. Yes. Stay consistent and just hit that post button. And right? don't Yes, run behind the that's- followers. You forgot that point. Yes, and don't run behind the followers because Sonali is the real example sitting with us Yes. today. And just the last thing, so we have the winners. Okay, so Sonali wins the Wishling Creator Convention. Thank you That was so the wildest much. among all. We have I told you guys, मैं सारे Yeah, contest सारे जीत contest जाती हाँ, हूँ. इसी को दे दो. there's a small gift from us. Very nice. Like I was not expecting this, but You are the lucky child. God Yes. child. And she's wearing her lucky heels as well. So that's Ah. why she's won. exactly these The are contest. the heels which are with me from last 5 years. Oh, nice. And मैं जितने भी achievements हैं इसी heels में मैं ही लेती हूँ. हर जगह. This is your Cinderella shoes. Yeah. And as you said कि this is the couch जहाँ पे बैठ के Manifestation पूरे होते I हैं. already manifested for my dreams too. Wow. Best. Very Nice. nice. If you enjoyed this conversation, do hit that like button. And share this content. And do comment about your favorite part about this video. And don't forget to subscribe to Wishling. Thank you so much Thank for you so doing much this. for so this. much. And I hope and definitely like this conversation would be super helpful for the audience seeing this, for the creators who want to start. Yes. Thank you so much for doing this. Towards the end, we have small gifts for everyone. Sonali. Thank you. Thank you so much, Kshitij. It was a fun session with you. Same here. Thank you, Pratibha. We enjoyed it. I hope that you guys also enjoyed the conversation, I right? hope people will love it too. Yes, they will definitely.